ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तुम माँ से हीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। नमस्कार, आज मैं विकास कक्षा 12वीं ब का छात्र आपके समक्ष सर्वधर्म प्रार्थना सभा पर मंच संचालन करने जा रहा हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रथम पाली के अध्यापक राजू झा सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा पर एक संगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कपट रहित छे काम क्रोध निर्वाया रे बन नर सैया तेनु दर्शन कर
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न माने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे की छात्रा देविका को आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो एक संगीत प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसका शीर्षक है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। See
principal, teachers, and my dear friends. I am Mohandas Karamchand Gandhi. I was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat state. My father's name is Karamchand Gandhi and my mother's name is Putribai Gandhi. People called me a Bapu. I also known as a father of nation. I always spread a message of non-violence and satyagraha. I fought for India's Don't see bad. Don't listen bad. Don't so bad. He is great leader. He is father of nation. His favorite bhajan is Raghupati Raghav Raja Ram. Thank you. हिंदुस्तान तेरा है हम पर एहसान ए जननी है हिंदुस्तान तेरा है हम पर एहसान रघुपति राघव राजा नाम पतित पावन सीताराम रघुपति। कुछ देर पहले आपने प्रथम पाली की छात्रा देविका द्वारा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुना होगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ द्वितीय पाली के छात्र विदित को, जो यही संगीत एक बार और गुनगुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विधांशु और मैं आपके सामने एक प्रार्थना गाने वाला हूँ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। धन्यवाद। महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। बच्चा बच्चा भी जानता है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता में अग्रिम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी अपने एक सादगी के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब प्रथम पाली की छात्रा प्रदीप्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो महात्मा गांधी पर भाषण देंगी। Hello, I am Pradipti Ranjan of class 10th B. Today I am going to tell you something about Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, whom we also known as Mahatma Gandhi, was born on 2nd October 1869. He was born in a Hindu Gujarati family. His father's name was Karamchand Gandhi and his mother's name was Putlibai Gandhi. Gandhi took law training at the Inner Temple, London. He went to South Africa to present an Indian businessman in 1893. He stayed there for 21 years. Soon after arriving in South Africa, Gandhi faced discrimination due to his color and heritage. Gandhi employed non-violent resistance in a campaign for civil rights. He returned to India in 1915 at the age of 45. Assuming the leadership of the Indian National Congress in 1921, Gandhi launched a nationwide campaign to reduce poverty, expand women's rights, build religious and ethnic wealth, end untouchability, and achieve Swaraj. Gandhi adopted an Indian loincloth or small dhoti and in winter a shawl, both woven with a traditional Indian spinning wheel or yarn hand spun on a spinning wheel as a mark of identification with India's rural poor. Bringing anti-colonial nationalism among ordinary Indians, Gandhi led the British to challenge the British imposed salt tax with 400 km salt march in 1930 and later in 1942 called on the British to leave India.
He was imprisoned for many years upon many occasions in both South Africa and India. During the official celebration of independence in Delhi, Gandhi toured affected areas, attempting to provide solitude. In the months that followed, he took several fasts to prevent religious violence. On 12 January 1948, when he was 78 years old, there was an indirect goal of putting pressure on India to pay some cash assets to Pakistan. Some Indians believed that Gandhi was too sociable. One of them was a Hindu nationalist, Nathuram Godse, who assassinated Gandhi on 30 January 1948 by firing 3 bullets on his chest. In India, we all celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October, which is a national holiday, and throughout the world we celebrate this day as International Non-Violence Day. Gandhi considered himself a Hindu, but as a Hindu, he saw all religions equally, trying to seek and express the same eternal truth and knowledge. Originally, he believed in the power of truth, compassion for others, and non-violence. The non-violent aspect of his faith marked his non-violence resistance to the British. On his 150th birth anniversary, we pay our homage respect to our beloved Bapu, and we shall follow his principles of truth, simplicity, Swadeshi, non-violence and cleanliness to best of our abilities. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने जाने से पहले ना जाने कितने विचार देके चले गए। उनमें से एक ये भी विचार था, जो आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं, पहले वो अपने अंदर कीजिए। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा द्वितीय पाली के उप प्राचार्य महोदय को, जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा पर प्रकाश डालेंगे। सभी को नमस्कार। आज के इस सर्वधर्म प्रार्थना के आयोजन के शुभ अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिसकी आज के समाज को बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तमाम तनाव, उदासी, निराशाएं और आपसी द्वंद्व ये समाज को घेरे हुए हैं। लोग अपने अपने सत्य में तक सीमित हैं और दूसरे के सत्य को समझना नहीं चाहते या अनजान बने रहना चाहते हैं। ये सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन हमें बताता है कि सीमित दृष्टिकोण से कही जाने वाली बात एक छोटे लक्ष्य तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें सभी मानवता और भाईचारे और समस्त पृथ्वी या ब्रह्मांड के विश्व एक चिरंतन सत्य की ओर ध्यान देना ही होगा। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में इसी दृष्टिकोण को आगे रख करके पूरे विश्व के मानव को एक मानते हुए ही अपने जीवन को के कार्यों का निर्धारण किया था और उसी के और वो अग्रसर रहे। उन्होंने एक उदाहरण आता है कि जिस प्रकार एक हाथी को न जानने वाले अंधे व्यक्तियों या जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उन लोगों ने जब हाथी को के बारे में परिकल्पना को जानने की कोशिश की स्पर्श करके, तो पता लगा जिसने हाथी की पूंछ को छुआ वो कहता है रस्सी के समान है। जिसने हाथी के पेट को छुआ उसने बताया कि हाथी किसी दीवार के समान है। जिसने हाथी के पैर को छुआ वो कहता है हाथी किसी खंबे स्तंभ के समान है। जिसने हाथी की सूंड को छुआ वो कहता है कि हाथी किसी पेड़ की टहनी के समान है। जिसने हाथी के कानों को छुआ उसने कहा कि हाथी वास्तव में एक सूप के समान है। तो वो झगड़ने लगते हैं और लेकिन जब उनकी आंखों की पट्टी खोली जाती है तो जानकर हैरान रह जाते हैं कि वो अपनी बात सही होते हुए भी कितने गलत थे। इसी प्रकार हम सीमित ज्ञानेंद्रियों, इस सीमित शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ जीवन जीने वाले समाज के अंतर्गत हम सोचते हैं कि हम ही ठीक हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हम चिरंतन तत्व की तरफ जाएंगे तो पता लगेगा कि हाँ वाकई बहुत कुछ एक बड़ा सत्य है जो हमें जानना ही चाहिए। इसके लिए हमें जो हमारे विश्व के जिन्होंने धर्मों का एक आरंभ किया था,
जिनके सत्यों को, तथ्यों को लेकर विश्व समुदाय के अनेक धर्म पंथ अपने अपने दिशाओं में चलते हैं, अगर हम उनके मूल सत्यों को इकट्ठा करके एक विश्व धर्म या एक सभी धर्मों का एक समान रूप लेते हुए एक कल्याणकारी प्रार्थना का आयोजन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि विश्व के मानव समुदाय के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और आज आपने इस कार्य को संपन्न किया है, आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगा, यदि हम महात्मा गांधी जी के चरित्र को अपने अंदर उतार लें तो जाने कितनी राहें हमारे लिए सुखदायी हो जाएंगी। अंत में मैं यही कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हों, सुखी हों। धन्यवाद।